بے شک یہ ایک ایسا خلا ہے جو کہ کبھی بھی پر نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ بڑے نایاب ہوتے ہیں جنہیں ہیرا کہا جاتا ہے، ان میں شمار ہوتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا، اور انہی کی یادوں کے حوالے سے اور انہی کی برسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر سحر کامران صاحبہ۔ السلام علیکم سحر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور ابھی ہم لوگوں نے کچھ یادیں کچھ ان کے حوالے سے جو کچھ ڈیٹیلز تھیں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ جیسی خاتون میرا خیال ہے کہ شاید ہی دنیا میں دوبارہ کوئی آئے، اور میں نے جتنی بھی پیپلز پارٹی کی رہنما جو کہ اسپیشلی خواتین ہیں ان کو دیکھا ہے وہ بہت انسپائر ہیں محترمہ کی شخصیت سے۔ آپ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گی؟ جی بہت شکریہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ بے نظیر تھی، اور ان کی جیسی دوسری شخصیت کا آنا پیدا ہونا، اور ان کی جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی اور عالمی دنیا میں ایک نام کمایا، وہ کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بے نظیر تھی۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے بہت وقت ملا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ زمانہ طالب علمی میں پیپلز فلم فیڈریشن جوائن کی، اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ تھا ان سے گائیڈنس کا بھی، ان سے تربیت لینے کا بھی، اور ان سے سیکھنے کا بھی۔ تو اس لحاظ سے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتی ہوں، اور پھر اس لحاظ سے بھی کہ جب وہ 18 اکتوبر کو واپس آئی پاکستان تو اس سفر میں شریک تھی، اور اس سے پہلے جب انہوں نے اپنی زندگی کا آخری عمرہ کیا اس ارادے سے کہ وہ اپنا ایگزائل ختم کر کے واپس پاکستان جا رہی ہیں، تو اس عمرے کے مبارک سفر میں بھی میں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، تو ان کے ساتھ جڑی اتنی یادیں اور اتنی خوبصورت یادیں ہیں کہ شاید کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب ان کی یاد نہ آتی ہو، کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب ان کی رہنمائی کی ضرورت نہ پڑتی ہو۔ آج بھی ان کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک طلسماتی شخصیت تھی، یعنی ایک ایسی شخصیت میں سمجھتی ہوں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ خالی ایک شخصیت کا نام نہیں، وہ ایک فکری سوچ کا، ایک بالکل نظریے کا نام تھا، ایک انقلابی سوچ کا نام تھا، ایک تحریک کا، ایک جد و جہد کا نام تھا۔ انہوں نے اسپیشلی خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے جو کاوشیں کی وہ قابل تحسین ہے۔ انہوں نے پاکستان کی خواتین کو شناخت دی۔ وہ کپاس چنتی ہوئی عورت کے پاؤں میں جوتی پہنانے کو ترقی کی معراج سمجھتی تھی۔ انہوں نے ہر جگہ پہ پاکستان کے لیے ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی ان کو جو عزت اور توقیر ملتی تھی تو پاکستان کو بھی ملتی تھی۔ بے شک بے شک، انہوں نے اس میں جس سحر طریقے سے صاحبہ جمہوریت کی جدوجہد کی وہ بے مثال ہے۔ بے مثال ہے۔ اچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کو عمرے کی سعادت بھی ان کے ساتھ حاصل ہوئی کہ آپ گئیں، ساتھ ہی تھیں آپ کے۔ مجھے بتائے گا کہ ان کی ایسی کون سی عادت تھی جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں ایک ایسی عادت کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سب کی تھی، یعنی ان کے ساتھ جب بھی ملو تو یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ صرف آپ کی ہیں، اور جب کسی اور سے پوچھو تو وہ بھی یہ سمجھتا تھا کہ بے نظیر صاحبہ اس کی ہیں۔ تو ان کا جو تعلق تھا، جو کمیونیکیشن تھی، جو رابطہ رکھنے کی ایک صلاحیت تھی، جو لوگوں کو یاد رکھنے کی ایک ان کی ایک خوبی تھی، وہ بے مثال تھی۔ یعنی بے نظیر صاحبہ جو ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی جو ہے ہر چیز کو، اس کی ہر پہلو کو بہت غور سے دیکھتی تھی۔ یعنی میں جب وہ عمرہ کرنے کے لیے آئی اور ہم جا رہے تھے سفر پہ، تو اس وقت وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا مجھے واپس پاکستان جانا چاہیے۔ تو ہم دوران سفر گفتگو کرتے رہے، اور میں نے انہیں کہا یس بی بی آپ کو جانا چاہیے، اس وقت وکلا تحریک بہت عروج پر ہے۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ کیا وکلا تحریک کے ساتھ تو سول سوسائٹی ہے، جب میں جاؤں گی تو کیا مجھے پذیرائی ملے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کے ووٹرز اور میرے چاہنے والے اور پاکستان کے عوام باہر آئیں گے؟ تو میں نے کہا یقیناً بیوی، لوگ منتظر ہیں آپ کے۔ اور جب ہم عمرہ کر کے جیسے ہی ہم عمرہ ختم کر کے واپس گاڑی میں بیٹھے تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا I am glad we have performed Umrah today. Today is 18, 1 and 8, 9 and 9 is my lucky number. وہ 18 جون 2007 کی تاریخ۔ اچھا، اور اس وہ میں سحر ذہن صاحبہ میں کہتے میرے ہیں کہ جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا تب صحیح پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، کہ جب کوئی مشکل سچویشن ہوتی ہے
27 दिसंबर तो एक ऐसा दिन है कि जो मेरा ख्याल है कि स्याह तरीन दिन जिसे कहा जाए तो गलत ना होगा, लेकिन उससे पहले 18 अक्टूबर भी था कि खुद कुछ हमला हुआ, और जिस तरीके से वो एक सानिया कारसाज किसको नहीं मालूम कि जो वहाँ पर माहौल और हालात हो गए थे। तो मुझे बताइएगा कि उसके बाद किस तरह पाया आपने बीबी को, कि मतलब बहुत सारे लोगों ने मशवरा दिया होगा कि भाई आपकी जान को खतरा, आप चली जाएं, लेकिन वो मौजूद रही। मैं आपको 18 अक्टूबर से पहले बता रही हूँ, जब हम दुबई में थे तो बीबी साहिबा को बार बार इस बात का एहसास दिलाया जा रहा था कि आप ना जाएं, आपके लिए खतरात हैं। और शहीद मोहतरमा बीबी भुट्टो साहिबा के तारीखी अल्फाज ये थे कि इफ आई हैव टू डाई इन माय कंट्री अमंग माय पीपल। उनको अपने वादे का बहुत एहसास था कि लोग मेरी एक कॉल के ऊपर आ चुके हैं और मुझे अब अपना वादा निभाना है और मुझे पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान को मेरी ज़रूरत है। और वो तमाम खतरात को जानते बूझते आई, और फिर वो जब धमाके हो गए और इसमें लोग शहीद हो गए और बीबी को खतरात नजर आने लगे, तो वो छुप के खौफजदा होके बैठी नहीं, वो एक एक जख्मी के, एक एक शहीद के घर गई। उन्होंने अपना सफर जारी रखा, और बिल्कुल। और जब ये वो सहर अपनी साहब, फैमिली से मिलने के लिए दुबई गई भी, तो जैसे ही इमरजेंसी लगी तो वतन की कॉल पर वापस आई। बिल्कुल। अच्छा, ये इस बात का सबूत है कि वो जमहूरियत बहुत के लिए थी। बहादुर थी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, सहर साहब, एक वो दौर था जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने जिस तरीके से आवाम को मुतहर्रिक किया, उन्होंने आइन को उन्होंने संभाला, उनके बाद फिर रैलियां और जो जो उन्होंने आमरीत का सामना किया वो सबके सामने, उसके बाद भाग दौड़, आसिफ अली भी। कितना मुख्तलिफ पाया आपने पीपल्स पार्टी को यहाँ पे, बड़ा खास है, कुछ बताएंगी? आज मंशूर भी पेश होने का कहा जा रहा है, तो क्या होने वाला है, आज क्या बताया जाएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि बीबी की लेगेसी को लेके जिस तरीके से साबिक सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चल रहे हैं, जिस तरीके से कमिटमेंट है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, तो मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है। पाकिस्तान खत्ते का एक नारा बीबी की, मैं समझती हूँ कि एक लेगेसी का भरपूर मुजाहरा था कि पाकिस्तान को एक करना था, पाकिस्तान को आगे लेके चलना था, जमहूरियत के राह पे इशारा पे गामजन करना था। फिर जिस तरीके से जो है 18वीं अमेंडमेंट हुई, जो है पार्लियामान को मजबूत किया गया, ये सब बीबी की लेगेसी है। और आज भी जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि हम सबको इकट्ठा करके रखा है, तो ये लीडरशिप का कमाल है, जो कमिटमेंट है उनकी, बेनजीर इंकम सपोर्ट प्रोग्राम, ये शहीद या मुफाहिमत की सियासत। अच्छा सहर लोग साहब, तनकीद अभी तो भी करते हैं, आप लोगों लेकिन के ये बीवी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि अभी ताज हैदर साहब की तरफ से खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि भाई तबादले जो किए जा रहे हैं बड़े अफसरान के, इस मौके पर यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी आपकी रिजर्वेशंस हैं। तो मुझे बताइएगा, आज का बहुत अहम होने वाला है खिताब, क़यादत सारी लाड़काना में जमा है, आज क्या बताया जाएगा आवाम को? देखिए, पीपल्स पार्टी का मंशूर आज जो है वो पेश किया जाएगा। कमिटमेंट बीबी की लेगेसी को पूरा करना है, अवाम की एम्पावरमेंट है, उनकी फलाह है, इंसानी हकूक का दिफा है, खवातीन की एम्पावरमेंट है। ये वो तमाम जो बीबी साहिबा हमारे लिए रास्ते मुतय्यन कर गई, और वो समझती थी कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान का वक़ार जमहूरी सफर में और जमहूरी रास्ते में है और जमहूरियत में है। तो उसी को लेके जो है वो आगे चल रहे हैं, और उसी सही। सहर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपसे मजीद भी बात करूंगी। इस वक्त शहजाद हमारे नुमाइंदे लाड़काना से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो बताएंगे कि वहाँ पर तैयारियां कैसी चल रही हैं और बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ कितने बजे शुरू हो जाएगा। वो शहजाद बताइएगा। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तो चंद रोज से लाड़काना में ही हैं, और आसिफ अली जरदारी भी लाड़काना पहुंच चुके हैं। बेनजीर भुट्टो की जो 16वीं बरसी है वो इंतहाई अकीदत व एहतराम से लाड़काना में मनाई जा रही है। गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया है। आज पीपल्स पार्टी जलसा करेगी अपना, और जलसे के हवाले से तैयारियां जो हैं वो गुज़िश्ता रोज मुकम्मल कर ली गई थी। इलेक्शन भी है, तो उसका हवाले से जो है वो काफी गहमा गहमी है। जगह जगह जो है वो इस्तकबालिया कैंप्स लगाए गए हैं, दूर दराज से काफिले आ रहे हैं, दीगर सूबों से भी
लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। हमने देखा कि गुज़िश्ता शब तक ख़वातीन तक जो हैं वो रात देर गए तक कैंप्स पे मौजूद थी और जो बाहर से अच्छा जालियां शहजाद, जैसा कि जी, आपने जी। बताया कि 3 दिन से बिलावल लाड़काना में ही मौजूद है, इसका मतलब है कि आज का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है, तभी तैयारी। आज के दिन की इम्पोर्टेंस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं? जी, आज के दिन की इम्पोर्टेंस ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी दूसरी बार लाड़काना से NA 194 से जो है वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं और वो पहले भी लाड़काना के MNA रह चुके हैं। साबका इंतखाबात में वो लाड़काना से जीते थे, लेकिन साबका इंतखाबात में उनके खिलाफ 52,000 से ज़ायद वोट भी पड़े थे। तो अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में अपना खिताब किया था, उन्होंने यही कहा कि मैं कंबर शदाद कोट और लाड़काना से दोबारा इलेक्शन इसलिए कंटेस्ट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ के मसाइल को ओन करूंगा और फिर यहाँ के जो भी मसाइल हैं उनको हल करूंगा। तो इम्पोर्टेंस ये भी है कि लाड़काना उनका एक लोकल हलका है, यहाँ पे लोगों को वो जानते हैं, पर्सनली लोगों से घुलते मिलते हैं, लोगों के अंदर आना जाना उनका रहता है। तो जो बुनियादी मसाइल है उन तक आगाही पहुंचती है, तो फिर वो उन मसाइल के हल की कोशिश बआसानी करते हैं। तो जो इलेक्शन मुहिम के लिए कहा गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि आज लाड़काना से इलेक्शन मुहिम का आगाज होगा, तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वो खुद यहाँ से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं। सही। अच्छा, अब एक चीज और मुझे बता दीजिएगा, इंतखाबी मंशूर के हवाले से आप क्या आज इंतखाबी मंशूर में बताई जाएगी? देखिए, इंतखाबी मशहूर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोटी कपड़ा और मकान है। अब जो उन्होंने साबका हुकूमत खत्म होने से पहले जो लोगों में घर तकसीम किए, खासकर ये इलाका जो है वो सैलाब ज़दा इलाका रहा है, वो लोग बहुत ज्यादा नुकसान से दो चार रहे हैं, लोगों के घर, जमीनें, माल मवेशी सब तबाह बर्बाद हो गए थे। तो मंशूर में जो एक अहम चीज साबका हुकूमत जाने से पहले उन्होंने ऐड ऑन कर दी थी, वो थी लोगों की बहाली और उन तक ठीक है शहजाद, मेरे साथ रहेगा इस वक्त सहर कामरान साहिबा भी मेरे। सहर साहिबा, आप मुझे बताइएगा, वज़ीर आज़म बिलावल तो मैंने पीपल्स पार्टी का सुना है टूर होने वाला है, क्या नारा आप लोग आवाम को देंगे कि भाई ये हमारी कमिटमेंट है आपसे? देखिए, हम तो कहते थे ना कि बेनजीर आएगी रोजगार लाएगी, तो अब बिलावल वही लेगेसी लेके आगे चलेंगे। उन्होंने आवाम को की खिदमत भी करनी है, जो एक हाउस होल्ड है, जो आमदनी है उसको भी बढ़ाना है, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा करने हैं और पाकिस्तान को खुशहाली की राह पे गामजन भी करना है, जमहूरियत का दिफा भी करना है और मुल्क को इस्तेकाम भी देना है। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। एक नौजवान की आदत है हमारे पास, जो कि इंशाल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं और पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से, अवाम के वोटों से अक्सरियती जमात बन के बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएगी। और इंशाल्लाह उनका यही वादा है कि बीबी के तमाम वादे, कायदे अवाम से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के तमाम वादे जो अवाम के साथ थे, जो उनकी फलाह के लिए थे, उनको पूरा करना है। अच्छा, इसमें सहर साहिबा भी जो चीज़ एक काबिल गौर है, क्योंकि देखिए लेकिन अभी जो आप लोगों की रिजर्वेशंस हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इलेक्शन कमीशन से दूर हो पाए? देखिए, बात ये है, पीपल्स पार्टी से फेयर एंड फ्री इलेक्शंस मांग रही है। पीपल्स पार्टी जो है वो चाहती है कि इलेक्शन एनवायरनमेंट भी जो है वो फेयर एंड फ्री हो और इन पोलिंग भी फेयर एंड फ्री हो। अवाम को उनका हक मिलना चाहिए। ये अवाम का हक है कि वो अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करें, अपने नुमाइंदे मुंतखब करें, ताकि वो जो चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो जिस मंशूर पे अमल चाहते हैं, वो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उस पे अमल हो सके। पीपल्स पार्टी से फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो मांग रही है। पीपल्स पार्टी का जो है मुकाबला आज जो है नफरत और तकसीम से है। पीपल्स पार्टी जो है कौमी यकजहती की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी अवामी फलाह की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी कौमी इस्तेकाम की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात कर रही है। आप ये देखेंगे, पहले भी जब बारिशें हुई, सैलाब हुई, पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के साथ खड़ी रही। बेनजीर चलें जी, अब आपकी एक्सपेक्टेशन आवाम भी अपना हक अदा करेगी और आप लोगों को चुनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।